nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Hello, good morning, and welcome back to my channel Sundays with Kritika, and you are watching Sunday Convos episode 4. So as I told you before, मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम क्या होती है, तो मैं एक बार फिर से ज़रा सा बता देती हूँ कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम वो होती है जिसमें ढेर सारे प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि मिल के एक स्पेशल नीड्स वाले जो हमारे बच्चे होते हैं उनकी नीड्स को केटर करते हैं। तो पिछली बार संडे कॉन्वर्स एपिसोड 2 में आई कॉल्ड शिवानी सिंह जो कि MBBS कर रही हैं, और उन्होंने आपको बताया था एक मेडिकल पर्सपेक्टिव अबाउट द डिसेबिलिटीज। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो वंस अगेन बिकॉज शी इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स मेंबर। इस बारी मैं एक और मेंबर को बुलाने वाली हूँ हमारी टीम के, और इस टीम के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जैसे कि स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर्स, पेरेंट्स, द जनरल एजुकेशन टीचर्स, physiotherapist and occupational therapist. So yes, for this time I am going to call an occupational therapist who is amazing in her work. She has been experienced for about 8 years and she has done her bachelor's in 2012, and then she did her post graduation from University of Southern California. Plus, she has worked in many places, many prominent places like Amity International School, Pushp Vihar. She has worked in Parivartan School. She has worked in Kothari International School, Sector 50, that is in Noida. So she is amazing in her work. She was my colleague and I know how she works. So I love her work. तो अगर आपको नहीं पता कि occupational therapy क्या होता है यार, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, ये कृतिका क्या सुना के बोर कर रही है। हमारी लाइफ में हमें पूरे टाइम सीखना होता है। As Socrates once said, and I quote, "All I know is nothing." Now I am really glad to call her, and her name is Akansha Mathur, and I hope you will like her. You will like her. Okay, let's call her. Hello, ma'am. How are you? You are my new guest. How are you feeling today? I'm good, Kritika. How about you? I hope you're keeping safe in this pandemic situation. And first of all, thank you so much for inviting me on your show. And I Welcome, really ma'am. give you a round of applause for this initiative of yours कि आप इतनी अच्छी तरीके से इस फील्ड में अवेयरनेस जो सबसे एक हमारा बेस है टू प्रोसीड टुवर्ड्स द फ्यूचर, वो आप कर रहे हो, तो बिग डील फॉर दैट। Thank you so much, and thank you so much for coming. I know कि आपके पास अपना जो है पूरा busy schedule है, फिर भी आपने time निकाला, and you have a kid. I mean, you are handling your house plus your job and everything. So kudos to you, and I'm glad that you took this profession, and that too, like now you're working in the school setup, because I've seen you working with the kids. So I know what Yeah, we you're have worked doing. You together. exactly know what you're doing. You know it, I and you know know, everything thank you. about it. Yeah. So that was because when I was thinking about calling someone from the multidisciplinary team, the first thing I thought when I was thinking about OT was you, just you, because if I have seen any OT working, like she knows what she's doing. So that I'm is you. flattered. I'm flattered. Yeah. Thank So you I'm so much, really, Kritika. I really like your work. So coming to the whole video, so my first question for you will be, what is occupational therapy? Because the people out there they must have heard the term, उन्होंने सुना होगा, लेकिन जब जनरल मासेस की बात करें तो शायद से सबको नहीं पता कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या चीज होती I है। understand. या I understand. तो आपका भी मन करता होगा कि जो मैं कर रही हूँ वो पता हो लोगों को, कि जब मैं बताऊं तो उनको अच्छे से पता हो, ये ना हो कि जो हमारी फील्ड के हैं सिर्फ उन्हें समझ आए, और ये जरूरी भी है शायद कि सबको समझ आए ताकि वो रीच कर सके वहां तक। तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो प्लीज थोड़ा सा आप बताओ कि ऑक्यूपेशन थेरेपी क्या होता है। देखो, आपने जैसे ही बोला ना मुझे कि सबको पता होना चाहिए, अभी मतलब मुझे अभी 8 साल हुए हैं, वो मुझे लगता है कि अभी बहुत कम ही है मेरे लिए। देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। अभी भी मुझे लगता है कि मैं एम स्टिल एक्सप्लेनिंग कि व्हाट एग्जैक्टली इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बट
अगर मैं कंपैरिजन करूंगी फ्रॉम द डे आई गॉट एडमिटेड टू दिस कोर्स एंड व्हेन आई फेल एक्चुअली लेफ्ट फॉर द फील्ड काम करने के लिए, उसके बाद से और अब में देयर इज अ बिग डिफरेंस, जो कि लोगों में अवेयरनेस है रिगार्डिंग ऑक्यूपेशनल थेरेपी. सो आई एम ग्लैड कि पीपल आर एक्चुअली कमिंग टू अस, कमिंग फॉर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, दे आर आस्किंग फॉर द सर्विसेज. दैट्स अ वेरी बिग डील. सो अब हम आते हैं, अगर हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे बात करते हैं, ठीक है. आई एम ऑलवेज रेडी विद माई पेन एंड पेंसिल स्टफ. टुडे आई बोरोड माई सन्स slate board, so I'm going to use that for explaining that. तो बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सबसे पहले तो कंफ्यूजन यही क्लियर कर दिया जाए कि आई एम नॉट रिलेटेड टू समवन जो आपके करियर गाइड करेगा. तो ऑक्यूपेशन इट्स नॉट रिलेटेड टू योर करियर. आई कैन गाइड यू विद योर ऑक्यूपेशनल थेरेपी. तो बेसिकली इसमें 3 चीजें हैं. ऑक्यूपेशन जब हम बात करते हैं, द वर्ड ऑक्यूपेशन, आई नो इट्स अ मिरर इमेज बट आई हैव रिटन ऑक्यूपेशन हियर. ओके, हाँ. तो इसमें 3 चीजें आती हैं जो हम एक्चुअली वर्क करते हैं. दैट इज द वर्ड ऑक्यूपेशन. सबसे पहले हम ऑक्यूपेशन से समझते हैं, हम यू बीइंग एन अडल्ट राइट नाउ, आई एम बीइंग एन अडल्ट, हमारे पास बच्चे आते हैं, दोज बीइंग इन द कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन, एंड हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, दोज बीइंग इन द कैटेगरी ऑफ एल्डर्स. हर एज ग्रुप का एक ऑक्यूपेशन होता है दिन भर में. जब से हम सुबह उठते हैं रात में सोने तक हमारे पास काम होते हैं, जिसको हम कहते हैं हमें उठना है, ब्रश करना है, वॉशरूम जाना है, नहाना है, कपड़े लगाने हैं, प्रेस करना है, ऑल द स्टफ. ठीक है, वो सब आता है हमारा सेल्फ केयर में. ओके, आई फॉरगॉट टू राइट सेल्फ केयर. तो पहली चीज जो आती है सेल्फ केयर में, तो ऑक्यूपेशन हमारा सबसे पहले सेल्फ केयर हुआ, अपना ध्यान रखना, कपड़े पहनना, खाना खाना, ठीक है, अपने आसपास की चीजों का ध्यान रखना. जो दूसरा पॉइंट है दैट इज वर्क, कि हम काम क्या करते हैं. सबसे पहले हम बच्चों के बारे में बात करते हैं कि एक बच्चे का क्या काम है. सेल्फ केयर हो गया, सुबह उठकर तैयार हो गया, ब्रशिंग हो गया, टॉयलेटिंग हो गया, उसको फिर जाना है स्कूल. स्कूल जाकर उसको राइटिंग करना है. द चाइल्ड हैज टू अंडरस्टैंड द टीचर एंड हैज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन. बाहर ग्राउंड में खेलने जाना है एंड अपनी बुक्स एंड कॉपी सब कुछ मैनेज करना है, अपना स्टेशनरी मैनेज करना है, लंच में जाना है. दैट इज द सेकेंड पॉइंट जिसपे हम एज एन ओटी वर्क करते हैं, दैट इज वर्क. ठीक है. थर्ड पॉइंट जो आता है दैट इज लीजर. लीजर के लिए हम क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे खेलते हैं. हम अपनी हॉबीज के साथ एंगेज होते हैं. सेम अगेन विद एल्डर्स. एल्डर्स अगर रिटायर्ड भी है, still they do have occupation, they have to take care of themselves, they have to follow their hobbies if they are sitting at home. तो ये एक 3 जो हमारे पिलर्स हैं, सेल्फ केयर, हमारा वर्क और लीजर, ये 3 डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है हमारा ऑक्यूपेशन. तो यही एक ऑक्यूपेशन है जिसके ऊपर एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हमेशा ध्यान देगा. तो आप जब भी एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को प्रैक्टिस करते हुए देखेंगे, यू विल सी कि अच्छा ये तो बच्चों के साथ खेल रहे हैं. So because that play is an occupation for that child, and I as an OT I am using that occupation for a treatment. Occupational therapy is all about using functional activities for functional independence. That is about OT. Okay, so I would be very honest, और I think ये पहली बार है कि मुझे OT के बारे में इतने अच्छे से पता लगा है, because being in the special education वाला, you know, हमारा तो अलग स्टडीज हुई थी. वी गॉट टू नो कि ओके टीम होती है, देयर इज एन ओटी, उनका ये काम होता है, दे हैव सम एक्टिविटीज, दे हैव दीस स्ट्रेटजीज, वो हमें समझाया था. बट एक्चुअली व्हाट इज दिस ऑक्यूपेशन इन द ऑक्यूपेशनल थेरेपी, वो मुझे आज समझ आया. राइट, थैंक यू सो मच. बहुत ही अच्छा बताया. या सो मैम, माय सेकंड क्वेश्चन फॉर यू विल बी, एंड it's not exactly a question, it's like how are you dealing with your kids in this pandemic? सबसे पहले तो जो अभी सबसे मेन ड्रॉबैक हुआ है हमारे बच्चों के लिए, स्पेसिफिकली लेट्स टॉक अबाउट आवर किड्स. ठीक है. सबसे पहला ड्रॉबैक कोविड-19 पैंडेमिक में हुआ है कि उनकी जो फिजिकल मूवमेंट, जो मोटर मूवमेंट, जिसका एक बहुत बड़ा रोल है उनकी डेवलपमेंट में, दैट हैज बीन कट टू मोर देन 60% आई सपोज. और क्योंकि हमारे स्कूलिंग का स्टाइल आल्सो हैज चेंज, लाइक अराउंड फ्यू बेसिक मेजर आवर्स ऑफ द डे जो बच्चे अब ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, उसमें टू इंक्लूड ऑक्यूपेशनल थेरेपी वाज अ लिटिल चैलेंजिंग. बट धीरे धीरे आई थिंक पेस कैच कर रहे हैं हम लोग भी. एंड आई प्रेफर, माई स्टाइल इज, आई थिंक मोस्ट ऑफ द ओटीज वुड एग्री विद दिस, कि हम लोग
वो एक हाफ एन आवर 40 मिनट्स का जो विंडो होता है जो हमें मिलता है ऑनलाइन सेशंस, वी मेक श्योर वी यूज दैट कि हम बच्चे को एक्टिविटीज में एंगेज करें, एंड दैट टू लॉट्स ऑफ ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज। जैसे कि विद ऑनलाइन सेशन हमारा एडवांटेज है कि बच्चे हमें इमिटेट तो कर ही सकते हैं, एंड हाफ ऑफ द किड्स फॉर ये उनको पता है कि मैम कौन सी जंप बोल रही है, मैम कौन सी एक्टिविटी हमें बोल रही है, ठीक है। एंड तो ये ग्रॉस मोटर एक्टिव, हाँ श्योर। हाँ मैम, एक बार आप जनरल मासेस के लिए एक बार बस थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दीजिए कि फाइन और ग्रॉस मोटर में क्या डिफरेंस होता है, ताकि हाँ, सबको तो समझ आ जाए। हाँ ओके, ग्रॉस मोटर बेसिकली आई थिंक मैं थोड़ा वो टेक्निकल लैंग्वेज में चली गई। इट्स ओके। हाँ, ग्रॉस मोटर फाइन मोटर में हमारा डिफरेंस क्या है। जब भी आप देखते हैं अपने बच्चे को बढ़ते हुए, ठीक है, सबसे पहले बच्चा गर्दन संभालना सीखता है, फिर वो अपने एल्बोज पर आता है, तभी उसके बाद वो अपने हैंड्स पर आता है, ठीक है। यही बच्चों का डेवलपमेंट है। फिर वो अपने नीज पे चलना सीखता है, ये सभी पेरेंट्स को पता होगा, हम सबको पता होगा। वो हाँ जी। चलना सीखता है, वो नीलिंग सीखता है, फिर वो धीरे धीरे स्टेप बढ़ाना सीखता है, एंड फाइनली दे स्टार्ट रनिंग। एंड देन उसके बाद हमारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आते हैं, स्टेयर क्लाइंबिंग करना, स्टेयर से उतरना, चेयर पे चढ़ के जंप करना। जैसे कि आई हैव अ टॉडलर, nowadays he is climbing up the dining tables and he is trying to jump over it। तो ये सारे हमारे जो मूवमेंट्स हैं, जो डेवलपमेंटल मूवमेंट्स हैं बच्चे को बढ़ने के लिए, चलने के लिए, बैठने के लिए, ये सब हमारी ग्रॉस मोटर मूवमेंट्स में आते हैं। अब हम बात करते हैं फाइन की। फाइन जो हमारी फाइन हैंड फंक्शन स्किल्स होती हैं वो होती है यहाँ, ठीक है। when we talk about fine motor skills we are talking about hand skills। पेन पकड़ना, पेन को ऐसे रोल करना, आई डू विद यू। कैप खोलना, डेफिनेटली। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके हैंड्स कितने फंक्शंस कर रहे हैं, योर बॉडी बीइंग सो स्टेबल, इसीलिए हम इसको फाइन मोटर स्किल्स बोल रहे हैं। को क्लोज करना, एंड वी कैन एक्चुअली ओपन इट विद वन हैंड, वी कैन क्लोज इट विद वन हैंड, ठीक है। यू कैन एक्चुअली swirl it around your fingers। हम लोग अनकॉन्शियसली ये काम करते हैं, बट जस्ट इमेजिन व्हाट आवर हैंड्स आर डूइंग, व्हाट काइंड ऑफ मैनिपुलेशंस दे आर डूइंग। तो यही आती है हमारी फाइन मोटर स्किल्स में, जो कि बच्चा सीखता है धीरे धीरे। आप देखते होंगे अपने छोटे बच्चे को बढ़ते हुए, वो पहले एक ब्लॉक्स उठाता है और ब्लॉक स्टैक नहीं कर पाता, ज्वाइन नहीं कर पाता। फिर कुछ टाइम बाद आप यू गेट सो एक्साइटेड, ओ माय गॉड ही इज जॉइनिंग द ब्लॉक्स नाउ, एंड देन ही इज एक्चुअली टेकिंग देम ऑफ। अब ब्लॉक्स भी निकाल रहा है, अब फिंगर से छोटे छोटे जो हमारे जमीन पर कुछ मोती या कुछ भी दालें पड़ी होती हैं, तो धीरे धीरे वो स्टार्टिंग में नहीं कर सकता, बट वो बाद में जैसे जैसे द चाइल्ड इज ग्रोइंग, वो धीरे धीरे वो छोटे छोटे दाने भी उठाकर आपके पास लेकर आता है। तो इट मीन्स उसके जो हैंड्स हैं दे आर डेवलपिंग द फाइन मोटर स्किल। फिर वो धीरे धीरे पेंसिल पकड़ना शुरू करता है, a bigger pencil and a smaller pencil, they start tearing the paper, scissor cutting शुरू करता है। all these departments are under fine motor skills। या और आई हम थिंक लोग ये चीजें हमें पेरेंट्स को भी बतानी चाहिए कि वो जनरली भी अपने छोटे बच्चों के साथ ये सब करना शुरू कर दें। एग्जैक्टली। तो आपको अगर कहीं पे भी लगता है कि इफ यू आर फोकसिंग टू मच ऑन पेंसिल स्किल्स, आई वुड रादर रिकमेंड कि आप थोड़ा उसके ग्रॉस मोटर पर भी काम करें। ग्रॉस मोटर में आपको बॉल कैचिंग, थ्रोइंग भी आता है। जो भी हम लोग गेम्स खेलते हैं बाहर, आउटडोर गेम्स, अ लॉट ऑफ ग्रॉस मोटर फंक्शन इज इन्वॉल्व। सो इट्स बेटर। और ग्रॉस मोटर का अपने आप में इंपॉर्टेंस है क्योंकि बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है इफ दे आर इन्वॉल्व्ड इन ऑल दोज मोटर स्किल्स। तभी हम लोग जब भी ऑनलाइन सेशंस भी लेते हैं, वी मेक श्योर कि हम बच्चों के साथ एंगेज हो रहे हैं different gross motor activities। Okay, so my last question, और maybe I am requesting you कि थोड़ी सी हमें एक्टिविटीज बता दीजिए जो कि अभी जो बच्चे हैं, चाहे वो फिर न्यूरोटिपिकल बच्चे हों या जो हमारे दूसरे बच्चे, हमारे स्पेशल बच्चे हों, हर कोई उनको यूज कर सके और अपनी फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर इन सब चीजों को डेवलप कर सके। कुछ एक्टिविटीज यू कैन शेयर। ओके, देखो कृतिका, वैसे तो एक इंडिविजुअलाइज हम लोग एक्टिविटीज रखते हैं एज जैसे हमारे पास इश्यूज आते हैं, बट जो मैं अभी आई एम कमिंग अक्रॉस कि जो अभी करंट हमारा सिनेरियो है लॉकडाउन में एंड चिल्ड्रन सिटिंग एट होम, उसमें पहली चीज जो हो रही है आई थिंक जिसका अवेयरनेस हमें फैलाना बहुत जरूरी है
कि जब भी आप ऑनलाइन सेशंस बच्चे कर रहे हैं, मेक श्योर कि उनका पोस्चर बहुत अच्छे से मेंटेन हो। Okay. एंड बाय पोस्चर आई मीन कि उसमें जरूरी है कि आप एक 90 डिग्री सिटिंग उनको बोले Okay, करने ma'am. के लिए, ठीक है, सबसे पहली चीज। और दूसरा है ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज में प्ले, इसको हम सिंपल Okay. टर्म्स में लेते हैं, प्ले एक्टिविटीज ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने अपने पेरेंट्स को बताया हुआ है कि टुडे विल बी डूइंग बॉल एक्टिविटीज, एक फुटबॉल ले लीजिए, एक छोटा सॉफ्ट बॉल ले लीजिए, एंड एक क्रेजी बॉल और समथिंग या टेनिस बॉल यू कॉल इट। तो टेक दीज 3 साइजेस ऑफ बॉल्स एंड एक छोटा सा बकेट रखिए एंड वी विल डू टारगेट हिटिंग। आई वुड टेल यू वन मोर एक्टिविटी, बहुत अच्छी एक्टिविटी वन चाइल्ड वाज एंगेज्ड इन। सो वी हंग अ रोप, छोटा सा एक रस्सी लेकर हमने नीचे एक बॉल टांग दी है एंड वी आस्क्ड द चिल्ड्रन, दे हैड 2 किड्स, कि आप दोनों बैट से जस्ट कोऑर्डिनेट विद द मूवमेंट्स ऑफ दैट बॉल, क्योंकि Sounds इससे fun. बच्चों की कोऑर्डिनेशन बहुत बेटर होती है ओवरऑल, जिन बच्चों को हमारे कोऑर्डिनेशन इश्यूज है, ठीक है। एंड फाइन मोटर स्किल्स की अगर हम बात करते हैं, जस्ट टेक दिस एल्यूमिनियम फॉइल फ्रॉम योर किचन, tear it, another skill, and ask them to crumple it. Okay. You see my finger movements, both the hands. Ask them to crumple it. Okay. So this will have, they will have the pressure to hold the pencil then later. Exactly. As a special educator also you must have come across कि बच्चे पेंसिल प्रेशर नहीं दे रहे, Yeah. Yeah. लिख Either रहे वो, हैं पर कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ, या तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर देने वाले भी होते हैं जिनका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है राइटिंग में, या कुछ होते हैं जिनका प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होता है। एग्जैक्टली। तो जिनके लिए प्रेशर पॉइंट, हमारे प्रेशर यू थिंक कि वो कम दे रहे हैं, दे आर नॉट होल्डिंग द पेंसिल प्रॉपर्ली, उनके लिए दिस एक्टिविटी इज रियली गुड। एंड फॉर एग्जांपल, इफ यू आर कमिंग अक्रॉस एनी चाइल्ड who is using too much of pressure on the paper while writing, take a tissue paper, ठीक है, and ask them to write on it using a pointed pencil Okay. and a small pencil. I'll always prefer a small pencil over a bigger one. You told me that. Yes. And I The worked same on that. क्योंकि you know the reason now. Yeah, now I know the reason. है ना? हाँ, हाँ. the more you explore, the more you get to know. So use True. a tissue paper, use a pointed pencil, ask them to write on it, and एक शर्त होनी चाहिए बच्चों के लिए, बेटा टिश्यू पेपर कटना नहीं चाहिए। और एक चीज और हम कर सकते हैं, like give them a lot of things to explore, where like opening Okay. Opening different the lids. stoppers. One Okay. is this, one is this, Nice. and you Okay. pop it, pop down, just for your thumb movement, pop Okay. down, pop down. So these are the basic activities जो आपको घर पर easily मिल जाएंगी. Just look forward to them. Let them write on the walls. Let them like scribble anything. अगर आपके बच्चे बोर हो रहे हैं टेबल पे लिख लिख के, tell them to go under the table and paint the bottom of the table. That's how I do it with my sessions also. And I let my child also do that. टेबल के नीचे भी अगर आप लिख सकते हो तो आपका हैंड स्ट्रेंथ अपने आप इंप्रूव हो जाएगी. So I don't have to work on that individually. And I'm going for strengthening activities or something. Okay. Now that you mentioned your kid, I really wanted him to join this because he's very cute. Let me tell you, he is very cute. I've seen him. और उनका नाम कबीर है, right? Right. I love his name. Lots of love to all. His name is so cool. He's going to have a lot of friends. Definitely, Yeah. everyone says the same thing for him. I Yeah, have to I be on love his guard, I name. guess. So thank you so much, ma'am, for coming. And if you have something to add, please, you can go on. You're most welcome, Kritika. Again, सबसे पहले मैं आपको appreciate करना चाहती हूँ कि आपने जो भी ये initiative लिया है, मैंने आपको starting में भी बोला है, and again मैं बोल because I'm really positive towards anyone so enthusiastic towards their field. And I would always recommend कि जो भी बच्चे they are looking forward for any profession like this, which you think is creative, pays you really good, and gives you a good exposure. Like sky is the limit, I think. And I'm still learning. I'm still hoping people keep learning. And COVID-19 may just stay home, stay safe.
That's it, I guess. Okay. It was Thank you lovely so meeting you much. online. Thank you so much आकांक्षा मैम, आपने टाइम निकाला और मैं बहुत खुश हूँ. आई थिंक ये वीडियो मुझे बहुत पसंद आ रही है. आई होप लोगों को भी पसंद Thank आए. you so much. Thank you so much. Thank you so much. Definitely, for sure. I'm always in with you. Okay. Bye bye. Always. Bye, darling. Take care. You too. So that was it for today's video, and I hope you liked it and got a lot of knowledge. So if you liked it, like it literally, okay? Go and like it and share it, because sharing is caring. So go on, like it, share it, subscribe so that you don't miss any video here, and keep watching Sundays with Kritika. Bye.